इसे दुनिया की छत कहा जाता है। दियोसाई एक द्योमालाई जगह। शिगर बल्तिस्तान का एक खूबसूरत खित्ता है जहाँ पर आपको सहरा भी मिलेगा, पहाड़, जंगल, दरिया, झरने, हर चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। एक बहुत खूबसूरत तरीन खित्ता। बीच में एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक तारीखी किला खरपोचो मौजूद है। दियोसाई में बेशबहा किस्म के फूल और जड़ी बूटियाँ वगैरह पाई जाती हैं और यहाँ पे एक बड़ी हैरतअंगेज़ बात यह है कि इस वसी और इस मैदान में आप देख रहे हैं हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और सरसब्ज पहाड़ियाँ हैं, आसमान को छूती हुई, पानी भी वाफिर मकदार में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई एक दरख्त भी यहाँ नज़र नहीं आएगा। दोस्तों से गुजारिश है कि यहाँ पे मच्छरों की बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़े मच्छर पाए जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए वो इस बात का भी ख्याल रखें। हम तकरीबन 13,500 फीट सतह समंदर से बुलंदी पर हैं। खूबसूरत फूलों के साथ साथ दियोसाई तितलियों और खूबसूरत परिंदों का भी मस्कन है। चूँकि यहाँ पे दरख्त वगैरह कोई नहीं है, इसलिए परिंदे यहाँ ज़मीन पर ही बसेरा करते हैं। दियोसाया के नाम से एक दियो यहाँ पर रहता है, जिसकी मुनासबत से इस जगह को दियोसाई कहा जाता है। अभी हम आगे झील पे भी चलेंगे। सुना है कि वहाँ पे परियां वगैरह भी रहती हैं, बड़ी द्योमालाई कहानियाँ भी यहाँ से मंसूब हैं। बल्ती ज़बान में इसे ब्यारसा भी कहते हैं, यानी सरजमीन बहार की सरजमीन भी इसे कहा जाता है। जी नाज़रीन, बहुत ठंडा और मीठा मज़ेदार पानी, इसे दुनिया की छत कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बल्तिस्तान के सदर मकाम स्कर्दू से कुछ फासले पे मौजूद और ये खूबसूरत झील यहाँ पे दियोसाई की। दियोसाई एक द्योमालाई जगह। इस जगह का नाम दियोसाई इसलिए पड़ा कहा जाता है कि यहाँ पे साया नामी एक दियो रहता है,
جس کی وجہ سے اس جگہ کو دیوسائی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک لوکل نام بھی ہے، مقامی زبان میں، بلتی زبان میں اسے بیرسا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے سرزمین بہار، یعنی بہار کی سرزمین۔ وہ اس لیے کہ یہاں پہ ناظرین نومبر سے لے کے مئی تک یہ پورا خطہ برف سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر تقریباً کم از کم 15-16 فٹ برف پڑتی ہے سردیوں میں، تو اسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین یہاں کی ایک 2-3 خاص بات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اس پورے خطے میں کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، یہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ حالانکہ یہاں پہ پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے، جگہ جگہ ندی نالے بہہ رہے ہیں، چشمے ہیں، جھیل ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود یہاں پر جو ہے کوئی درخت آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور یہاں پہ بے شمار اقسام کے پھول اور جڑی بوٹیاں ہیں۔ پرندے بھی یہاں پہ کئی قسم کے ہیں، لیکن وہ چونکہ درخت نہیں ہے اس لیے وہ پرندے بھی زمین پہ بسیرا کرتے ہیں یہاں پہ۔ اور آپ کو اس مقام کی اہمیت کے بارے میں میں بتاؤں کہ دنیا میں جو اس وقت تقریباً ناپید ہو چکا ہے بھورا ریچھ، بھورے ریچھ صرف پوری اس دنیا میں صرف یہاں دیوسائی میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور مختلف جانور ہیں۔ ایک جانور ہم آپ کو اگر کیمرے میں ریکارڈ کر سکیں دکھائیں گے، اس کو مقامی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ تو ایک خرگوش ٹائپ کا جانور ہوتا ہے، اس نے جگہ جگہ بل بنائے ہوتے ہیں زمین کے اندر، اور جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک مخصوص قسم کی آواز نکال کے اپنے ساتھیوں کو بھی خبردار کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ خطرہ ہے۔ اس وقت ہم سطح سمندر سے 13,500 فٹ کی بلندی پر ہیں، اور یہ جو دیوسائی کا خطہ ہے یہ 3,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور اتنا خوبصورت اور سرسبز علاقہ آپ ضرور آئیں، اس کو دیکھیں۔ اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا اگر وہ دکھا سکیں تو یہاں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ نانگا پروت کی چوٹی کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، برف پوش چوٹی یعنی وہ بھی نزدیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے استور بھی نزدیک ہے، اور چلم کا علاقہ بھی نزدیک ہے۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ ہم نے دیکھا، آپ کو دکھائیں گے بھی کہ بے شمار یہاں پہ ملکی اور غیر ملکی سیاح یہاں پہ آتے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں، لیکن جو یہاں اسکردو سے یہاں کا جو رابطے کا جو راستہ ہے، یا استور کی طرف سے گلگت کی طرف اور یا اسکردو کی طرف، بہت کچا اور بہت دشوار گزار ہے، بڑا تنگ راستہ ہے اور بہت مشکل راستہ ہے۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش کریں گے کہ اس راستے کو بھی بہترین کر کے بنایا جائے، تاکہ یہ علاقہ بھی کسی طرح بھی دوسرے دنیا کے خوبصورت ترین خطوں سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے، بہت خوبصورتی ہے یہاں پہ، ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے۔ تو گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ ادھر ایک بہترین قسم کا راستہ بنایا جائے، تاکہ زیادہ سہولت کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں سیاح یہاں پہ آ سکیں اور یہاں کا رخ کر سکیں۔ تو ناظرین اس وقت ہم شوسر جھیل میں موجود ہیں، بہت ٹھنڈا پانی ہے، اور اس وقت جب پورے پاکستان میں گرمی کی شدید لہر دوڑ رہی ہے، لاہور میں، کراچی میں، مختلف مقامات پر، تو یہاں پر بہت ہی پیارا موسم ہے۔ دیکھیے آپ اگر آنا چاہیں تو ان علاقوں کا بھی رخ کریں، بہت خوبصورت جگہ ہیں، گلگت بلتستان، اسکردو، حفظہ، بہت خوبصورت جگہ ہیں، شکر، خپولو، گانچھے، تو ان علاقوں کا بھی رخ کریں تاکہ آپ جو ہے مزید محسوس کر سکیں۔ ناظرین اس وقت یہاں پہ بڑی تعداد میں سیاح بھی آئے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے، ملکی اور غیر ملکی، تو کچھ لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ جی آپ بتائیے، آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟
मैं लाहौर से आई हूँ। कद्दू बल्तिस्तान के बारे में सुना था कि बड़ा खूबसूरत इलाका है और सरसब्ज़ है, इलाका भी है, पहाड़ भी है और बहुत ही खूबसूरत, ठंडा भी है। गर्मियों में तो खुसूसन बहुत ही खूबसूरत, जैसे सुना था वैसे ही खूबसूरत था वाकई। पहाड़ सरसब्ज़ और मज़े की बात ये कि इस पहाड़ में इतने खूबसूरत हर किस्म के फूल थे, छोटे छोटे थे लेकिन खूबसूरत हर किस्म के फूल। आजकल हब्स और गर्मी का मौसम है, तो यहाँ आके क्या महसूस कर रहे हो? तो ऐसा लगता है जैसे हम मसनूई जन्नत में आए हैं और बहुत ही खूबसूरत, वाकई ठंडा महसूस कर रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। दिल करता है यहाँ से वापस ना जाऊँ इस इलाके से, लेकिन मजबूरी है, वापस तो जाना ही अपनी। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारे सरजमीन पाकिस्तान को ऐसे खूबसूरत इलाकों से नवाजा है। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, एक और हमारे दोस्त यहाँ पे सयाह फिरने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी भाई, आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके? मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, आपने भी एंजॉय किया होगा। देखें आप इस झील पे पहुँच के अक्सर बंदे को हाइट बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। अभी भी मुझे भी थोड़ा लग रहा है। देखें आप, यकीनी तौर पे 13,500 फुट की बुलंदी पे है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको डेफिनेटली, मुझे वैसे कोई फील नहीं हुआ, लेकिन ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनको डेफिनेटली फर्क पड़ता होगा। जी जी हाँ, तो अभी मुझे थोड़ा सा हल्का सा महसूस हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि अभी हम इतने ऊंचाई पे पहुंचे हुए, आपके बैक साइड पे आप देखें, थोड़ा आप वीव लेंगे तो आपके पीछे नंगा पर्वत आपको नजर आ रहा होगा। जी 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 बिल्कुल। तो अभी कहने का मतलब ये है कि हम इतने हाइट पे पहुंच गए हुए हैं, थोड़ा सा महसूस हो रहा है और महसूस होने के बाद उसका इलाज भी है। ये पानी थोड़ा सा आप पी लेना, जी तो जी जी, बंदा सेट पे हो जाता है। पता नहीं इसमें कितने चश्मों का पानी है। बिल्कुल, और चश्मे का पानी तो आपको पता है बड़ा शफा बख्श। आप यहाँ के मकामी हैं? जी मैं मकामी हूँ। हाँ, तो आप बहुत खुश नसीब हैं। ये झील है, इसमें मछली भी खास किस्म की ट्राउट मछली पाई जाती है। तो मछलियाँ पाई जाती है, एक दरियाई मछली है, एक दूसरी बात है कि लाके इसमें छोड़े हुए एक कुदरती इसके अंदर ही है, एक ट्राउट है, एक दरियाई मछली है। दरियाई मछली को नीचे से लाके इसमें छोड़ा गया है, यानी माही परवरी महकमे की तरफ से। जी, आप उनके बंदे को भी देख सकते हैं, उधर ड्यूटी दे रहे होंगे और पुलिस के बंदे भी होंगे। तो बहरहाल आपको तो यहाँ पे शिकार कर सकते हैं मछली का? शिकार कर सकते हैं, उसके लिए आपको फीस भरना होगा। अच्छा, तो उनके अपने बंदे उधर बैठे होंगे, तो उसके अपने टेम्परेरी लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेना होगा और वो भी आप घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, जितना आप चाहें उसी के हिसाब से। तो उसकी कितनी फीस है, आपको कुछ पता है? घंटे का कोई तारीफन हो सकता है 100 रुपीज होगा। ट्राउट मछली तो बहुत खुश जायका और बड़ी प्यारी। हमने देखा है रास्ते में लोगों ने कैंपिंग भी की हुई है जगह जगह, और लोग ठहर रहे हैं, तो बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। उसको रोस्ट करके आप खाएंगे तो 100 रुपीज़ तो मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब है। तो आप इस गवर्नमेंट को इस इलाके की तरक्की के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि रोड अगर सही तरह की बन जाए तो सियाह के लिए और क्या बात है, ठीक है कि नहीं। अभी रोड की वजह से काफी बंदे उधर से वापस चले जाते हैं, छोटा दियो सही से वापस चले जाते हैं। सर जेल में तो आता ही नहीं है। तो इक्का दुक्का 1-2 बंदे जिसके पास हेवी मशीनरी हो तो वो अगर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज वो जो छोटे गाड़ियां हैं वो नीचे से ही वापस चले जाता है। दुश्वार तरीन रास्ता है जिससे हम आए हैं। अगर बंदे से अगर एक गलती हो जाए ना, उसकी पहली और आखिरी गलती हो, आखिरी गलती। और यकीन करें, हम सुबह के 7 बजे के निकले हुए हैं, तो हमें इस झील पे पहुंचे हुए तकरीबन मेरा ख्याल है आधा घंटा पौना घंटा हुआ है। तो वाकई ऐसी जगहों पे पहुंचने के लिए हुकूमत को चाहिए कि सयाहत को फ़रोग़ दे। और इस इलाके में आप देखें बुलंद तरीन चोटियाँ भी है, केटू भी है, मशाबुरुम, गशाबुरुम और दुनिया की बुलंद तरीन मुख्तलिफ चोटियाँ। नांगा पर्वत, जैसा आपने कहा कि बेग में नांगा पर्वत नज़र आ रहा है। रोड का अगर मसला हल हो जाए, अगर ये पक्के हो जाएं तो फिर उसके बाद क्या बात है, वो छोटे गाड़ियाँ भी पहुँच जाएंगे। जी ठीक है कि नहीं, सियाहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हाँ जी, मंजूर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक बच्चा भी यहाँ पे आया हुआ है फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए, तो इनसे भी बात करते हैं। जी बेटा, आपका क्या नाम है? मैसम अली अकबर। जी मैसम, आपको क्या महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छी जगह है। देसाई के बारे में आप क्या जानते हैं? मौसम देसाई के बारे में मैं, ये झील है और ये अच्छा मंजर है। आपको बड़ा अच्छा फील होता है यहाँ पे आके?
जी मेरा ख्याल है ये बच्चा भी आपके साथ है, आपके भाई है? क्या नाम है बेटा आपका? मिनहाल अली अफगान। मिनहाल अली असगर। जी मिनहाल, आप क्या फील कर रहे हैं यहाँ पे आके? यहाँ पर आके बहुत अच्छा फील। अच्छा, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे सबसे? झील और ये गार्डन ग्रास और मुख्तलिफ किस्म के फूल, बड़ी खूबसूरत जगह है ना। आप काफ़ी हाइट पे आए हुए इस टाइम, आपको पता है 13,500 फीट की बुलंदी पर आप इस वक्त मौजूद थे, है ना? तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा ना। पानी कैसा? आप आगे पानी में फिर रहे थे, मैंने देखा, कैसा पानी? पानी बहुत ठंडा है। ठंडा है, मज़े का भी है। ये तो सारा झील और चश्मे का पानी है, इसमें तो सारे मुख्तलिफ चश्मों का पानी है। मेरा ख्याल है तो बड़ा शफा बख्श पानी होगा, बड़ा साफ़ सुथरा पानी। देखें वो मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं अंदर, और पत्थर, सारी चीज़ें साफ़ नज़र आ रही हैं, है ना? तो ये पानी भी बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया बेटा। जी हमारे एक और साथी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पिकनिक के लिए आए हुए हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम बख्तावर अली है। बख्तावर अली, आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ, यहाँ पे सैर के लिए स्कर्दू आया था, और वहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक काफ़ी बुलंदी पे एक खूबसूरत पहाड़ी जगह है जिसे दियोसाई कहते हैं, और यकीनन मैं कह सकता हूँ कि ये कश्मीर से भी ज़्यादा प्यारी जगह है। कि अगर कश्मीर को ज़मीन की जन्नत कहा जाता है, जन्नत अर्जी कह सकते हैं, जन्नत अर्जी वाकई कह सकते हैं। और ऐसी खूबसूरत जगह के मैंने पहले कभी नहीं देखी। हमने जब ये कुदरती खूबसूरती देखी है तो दिल को काफ़ी खुशी हुई है। लिहाजा मेरी यही कोशिश है कि हर साल इंशाल्लाह एक ज़रूर चक्कर लगाऊं यहाँ पे। और काफ़ी बुलंद जगह है, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है। और आपको सांस में तकलीफ महसूस हो रही है? कैसे महसूस हो रहा है ऑक्सीजन? हल्की फुल्की, जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था तो तकलीफ महसूस होती थी, लेकिन अब जिस्म इसका आदी हो गया है। और एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पे बुरा रीछ मौजूद है, हमें अभी नज़र तो नहीं आया है लिहाजा, लेकिन कोशिश हमारी जारी है कि शायद हमें नज़र आ जाए। तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसको अपने कैमरे की आंख में महसूस कर सकें और लोगों को दिखा सकें, क्योंकि बुरा रीछ तो आपको पता है दुनिया में अब नापेद है, सिर्फ इसी इलाके में पाया जाता है। इस इलाके को ये सादत भी हासिल है। तो और आपने यहाँ पे क्या क्या देखा? और हमने यहाँ पे दीगर मुकामात और देखे। यहाँ पे एक ये पीछे लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है। इसके अलावा एक इस तरह की यहाँ पे सतपारा लेक है स्कर्दू में, वो हमने देखी, बहुत खूबसूरत थी। और जो रास्ते में आती है, इधर आते हुए रास्ते में, और जिस पे अब डैम भी तामीर किया गया है। डैम भी तामीर किया है। इसके अलावा एक शिगर के रास्ते में एक लेक है, वो ब्लाइंड लेक जिसको कहते हैं, अंधी लेक, यानी कि वो किसी को नहीं बख्शती। वो लेक भी बहुत खूबसूरत है। लिहाजा और काफ़ी लेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ये दियोसाई है, यहाँ पे पता नहीं चलता, हर जगह से पानी निकल के आ रहा है। अब ये लेक है, चारों तरफ से बंद है, लेकिन इसका भी नहीं पता कि ये कहाँ से पानी निकल रहा है इसमें से। लिहाजा हमें बहुत मज़ा आ रहा है। इसका पानी भी बहुत ठंडा है, पैर सुन हो जाते हैं हमारे। अच्छा, हमने सुना है यहाँ पे जो है बड़ी देव मलाई यहाँ के किस्से हैं। यहाँ पे एक साया नामी देव रहता है, और इसके अलावा यहाँ पे परियां भी रहती हैं। इस झील पे परियां मौजूद होती हैं, हमें नज़र तो नहीं आ रही। खैर, हर इंसान ख्वाहिश करेगा कि उसको देख सके। ये चीज़ मैंने भी सुनी स्कर्दो वालों से कि ये दियोसाई है, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे दियो एक यहाँ पे पहले रहता था, जिसके नाम पर इन्होंने ये दियोसाई नाम इसका रखा। और इसके अलावा परियां यहाँ पे हमें भी काफ़ी, साया नाम का एक दियो रहता था। हाँ, आने से पहले हम काफ़ी यानी कि ना इमेजिनरी तौर पे यहाँ पे तस्वुराती तस्वीरें जहन में ला रहे थे कि यहाँ पे परियां कैसी होंगी, लेकिन अभी तक हमें कोई परी नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा सैयाह है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा जिसने मुझे ना यहाँ पे टॉर्चर किया, वो ये कि यार इधर सड़कें बिल्कुल बेकार थी। हालांकि इतनी प्यारी जगह, अगर ये जगह मैं कहता हूँ कि अगर किसी बाहर किसी यूरोपियन कंट्रीज के पास होती तो वो नहीं, इस जगह का तो पूरा मुकाबला ही नहीं ना पूरी दुनिया में। दुनिया की छत कहा जाता है इसको, कोई मुकाबला ही नहीं। बुलंद तरीन मकाम है दुनिया का। चीज अगर किसी यूरोपियन कंट्री के पास होती तो वो मैं कहता हूँ इसको ऐसा यार पॉइंट बनाते कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे देखने के। वैसे तो कोई शक नहीं, वैसे भी आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं। अभी यहाँ पे देखा जाए तो पीछे लाइनें लगी हुई अंग्रेजों की, बेतहाशा गाड़ियाँ आई हुई हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ना सरकार को इसको डेवलप करना चाहिए यार। रोड अभी हम आए, हम सुबह 7 बजे के निकले हुए थे तकरीबन,
تو ابھی جا کے مشکل سے پہنچے ہیں جب شام ہونے والی ہے. تو اتنا گندا روڈ ہے کہ گاڑی بھی توبہ توبہ کرتی ہے. اب لہٰذا سرکار سے یہ گزارش ہے کہ یہ روڈیں کچھ صحیح بنوائیں, ان لوگ کو تارکول وغیرہ لگ جائے تو جو سیاح ہیں ان لوگ کو آنے میں آسانی ہو, تو یہ ہمارے زیادہ سے زیادہ سیاح یہ ہمارے ملک کے لیے بینیفیشل ہوگا. یہ صرف سیاحوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے لیے بینیفیشل. اور اس خطے میں آپ نے دیکھا ہے صرف یہ ایک جگہ نہیں ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ کیٹو ہے, گشبروم, مشبروم, بلند ترین چوٹیاں, نانگا پربت, اور اس کے علاوہ بے شمار خوبصورت حسین مقامات, اور ضلع یہاں کا ضلع شگر ہے, ضلع گانچے ہے, اور بہت خوبصورت وسیع مقامات. ہم تو صرف لوگ جاتے ہیں مری چلے جاتے ہیں, اور مری میں آپ جو ہے نا 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے میں آپ پھر کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ اتنے وسیع مقامات ہیں, اتنے وسیع علاقے ہیں, یہاں کا رخ کرنا چاہیے سیاحوں کو. میں سیاحوں سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ سیاح مری کا رخ بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں مری اپنی جگہ پہ خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, لیکن اگر ایک بار انسان یہاں کا رخ کر کے دیکھ لینا کہ قدرت نے یہاں پہ کیسی نعمتیں چھپائی ہوئی ہیں, کیا خوبصورتی ہے یہاں پہ قدرت کی, تو وہ انسان پھر مری یا دوسری تمام مقامات کو بالکل اس کا ذہن بھول جائے گا. بے شک بے شک. بختیار علی بہت شکریہ آپ کا, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع ملتی رہے.